Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome you all at online chemistry class, chapter 16 hydrocarbon. Today is the 6th lecture. In today's lecture, we will study about the conjugation and isomerism. First of all, let me give you an idea about the isolated, conjugated and cumulated P system. The first one is the isolated. What is isolated? If double bonds are separated by one or more saturated carbon atoms. You just observe the example, students. Here, two double bonds are present and they are separated by the two single bond. So such systems in which double bonds are separated by two or more than two single bond is known as isolated. ठीक है, जिसमें हमारे पास एक डबल बॉन्ड दूसरे डबल बॉन्ड पे इफेक्ट नहीं कर रहा होता, इसलिए इसको आइसोलेटेड कहा जाता है. Second is the conjugated. What is conjugated? If they are separated by only one single bond. Just observe the example. Here we have the two double bond and they are separated by only one single bond. So such system in which double bond are separated by only one single bond, that is known as conjugated. Okay. And third is the if two double bonds on one carbon are said to be cumulated. You just observe the example. Here one carbon is attached with the two double bond. Okay, two double bonds on one carbon, that's why it is known as cumulated. Now come to the conjugation. The word conjugation is derived from a Latin word that mean to link together. In organic chemistry term, it is used to describe the situation that occur when pi bonds, that is a double bond, are linked together. एंड यू नो वेरी वेल कि हमारे पास जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक बॉन्ड हमारे पास सिंगल होता है और दूसरा हमारे पास पाई बॉन्ड होता है. तो पाई बॉन्ड आपस में जब कॉन्जुगेशन में, जिसमें हमारे पास दो डबल बॉन्ड आपस में सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर एक दूसरे से लिंक्ड में होते हैं पाई बॉन्ड. ठीक है. एंड आइसोलेटेड pi system exists only between a single pair of adjacent carbon atoms. Okay. Now here is an example. Just observe the first one, that is the ethene. ethene का आपको फार्मूला पता है हमारे पास, उसमें क्या होता है, कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है. ठीक है. अब इसमें हमारे पास यहाँ पर ना और सिंगल बॉन्ड है ना यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड है, इसलिए ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे दैट इज़ द आइसोलेटेड. ठीक है. हियर वी हैव अ प्रोपीन. प्रोपीन का लाइन स्ट्रक्चर आपको यहाँ इस तरह से बताया जा रहा है. फॉर एग्जांपल कार्बन 1, कार्बन 2 एंड कार्बन 3. ठीक है. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ऑल्टरनेट डबल बॉन्डिंग नहीं हो रही है, बल्कि हमारे पास सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है. ठीक है. तो ऐसे सिस्टम में जिसमें हमारे पास सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड या एक डबल बॉन्ड होता है, दैट इज नोन एज आइसोलेटेड. ओके. नाउ कम टू द 1,2 प्रोपाडाइन. 1,2 प्रोपाडाइन में आप देख सकते हैं एक हमारे पास यहाँ पे कार्बन है, सेकेंड एंड थर्ड कार्बन. ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हमारे पास ऐसा कार्बन जिसमें हमारे पास दोनों तरफ डबल बॉन्ड लगे हुए हों, तो ऐसा कार्बन और ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं दैट इज द क्यूमुलेटेड. फोर्थ वन, लास्ट वन, दैट इज द 1,3 ब्यूटाडाइन. 1,3 ब्यूटाडाइन में इफ यू ऑब्जर्व हियर वी हैव अ कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 एंड कार्बन 4. okay, we have a 4 carbon atoms, and these 4 carbon atoms, you just observe here we have a alternate double bond, single bond and then double bond. We have alternate double bond, so such system is known as in which we have a alternate double bond, that is known as conjugated. ठीक है. यहाँ पे जो स्टूडेंट ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है, ऑब्वियसली आपको पता होगा यहाँ पे आपको पी ऑर्बिटल दिखाया जा रहा है और हमारे यहाँ पे जब पी ऑर्बिटल होता है ये पाई बॉन्ड बना रहा होता है. ठीक है. पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है क्योंकि वो हाइब्रिडाइज नहीं होता, मिक्स नहीं होता, इसलिए वो परपेंडिकुलरली ईजिली पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा होता है. ठीक है. नाउ कम टू द 1,3 पेंटाडाइन. जस्ट ऑब्जर्व द 1,3 पेंटाडाइन. 1,3 पेंटाडाइन में here we have a 1, 2, 3, 4 and 5 carbon. Okay, and in 5 carbon we have a alternate double bond. alternate double bond को यहाँ पर इस तरह से शो किया गया है, आप देख सकते हैं. हमारे पास एक कार्बन का पाई बॉन्ड, दूसरे कार्बन का थर्ड वन एंड फोर्थ वन. 4 कार्बन का हमारे पास पाई बॉन्ड दिखाया गया और जो फिफ्थ वन यहाँ पर है कार्बन, उसके साथ क्योंकि पाई बॉन्डिंग नहीं हो रही है इसलिए वहाँ शो नहीं किया गया है. जब भी हमारे पास ऑल्टरनेट डबल बॉन्डिंग होगी दैट इज नोन एज कॉन्जुगेटेड. आफ्टर दैट 1,4 पेंटाडाइन. आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 डबल बॉन्ड्स हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय द 2 सिंगल बॉन्ड. ओके. यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है. ठीक है. तो हमारे पास अगर डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय द 2 सिंगल बॉन्ड, दैट इज नोन एज आइसोलेटेड, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर रहे होते. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज
isolated system. आफ्टर दैट 1,1,3-cyclopentadiene. अगर आप स्टूडेंट आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, here that is a carbon 1, that is a carbon 2, there is a carbon 3 and that is a carbon 4 and that is a 5. अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये है, and between 2 and 3 that is a single bond. So we have here a alternate double bond, and whenever we have alternate double bond, the system is known as conjugated. Okay, now come to the last one, that is a 1,3-cyclohexadiene. Here we have a alternate double bond. ठीक है, if you just observe students, यहाँ पर हमारे पास जो इतना सा पोर्शन है, यहाँ पे हमारे पास alternate double bond है. ठीक है, that's why the system will be known as conjugated. Okay, now come to the second topic of the lecture, that is the isomerism. What is mean by the isomerism? The chemical compound which have the identical molecular formula but different properties. Okay, and we can say that the arrangement of atoms in molecules are called isomers and the phenomena is known as isomerism. ओके, आई थिंक स्टूडेंट्स ये हम लोग लास्ट जो हमारा चैप्टर था उसमें भी हमने आइसोमर्स के बारे में पढ़ा था, आइसोमेरिज्म के बारे में, और मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दी थी और कुछ मैंने आपको होमवर्क असाइनमेंट भी दिए थे. जैसे आई टोल्ड यू कि पेंटेन के आइसोमर्स बनाएं, हेक्सेन के आइसोमर्स बनाएं. तो अगर आप लोगों ने वो किया हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और उसके डिफरेंट आइसोमर्स हम बना देते हैं. ओके, सो द कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different structure formula or different in properties, that is known as isomerism. The arrangement of atoms in the molecules are called the isomers and the phenomena is known as isomerism. The word isomer, the word isomer is derived from the Greek word iso and meros, which mean equal part. Okay, the term was coined by the Swedish chemist Jacob Berzelius in the year 1830. Now come to the types of isomerism. Types of isomerism में students, you just observe, आइसोमेरिज्म को मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है. वन इज़ द स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, सेकेंड इज़ द स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फर्दर डिवाइडेड इनटू डेक्स्ट्रो-रोटेटरी एंड लीवो-रोटेटरी. And cis and trans is also known as geometric isomerism, that is further divided into two forms. One is the cis isomer and second is the trans isomer. Okay, that is all about the stereo isomerism. Now come to the second type of the isomerism, that is the structural isomerism. In structural isomerism, it is divided into the 5 types. First is the chain isomerism, second position, third functional, metamerism and tautomerism. Okay, in this lecture we will study only about the structure isomerism. We will study in detail about the structure isomerism. Okay, now come to the structure isomerism. What is structure isomerism? Commonly referred to as the constitutional isomerism. It is also known as constitutional isomerism, and it is appear due to the difference in the arrangement of atoms within a molecule without any reference to space. ओके, हमें स्पेस से रेफरेंस हम नहीं लेते हैं जैसे कि हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म में लेते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी कि उसमें हम लोग स्पेस से रेफरेंस लेते हैं. यहाँ पे हम कोई स्पेस से रेफरेंस नहीं देखते हैं, बल्कि जस्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो हमारा जो मॉलिक्यूल है उसके मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में कितना डिफरेंस आ रहा है. द फंक्शनल ग्रुप एंड द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ दीज एटम्स आर लिंक इन डिफरेंट वेज. ठीक है, हियर 5 टाइप्स: चेन, पोजिशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म. Now let's start from the first one, that is the chain isomerism. Now chain isomerism have the same molecular formula but differ in the order in which the carbon atoms are bonded to each other. For example, you just observe this example. Here we have a n-butane and here we have the isobutane. अगर आप देखें students, इन दोनों में हमारे पास let me show you, इन दोनों में हमारे पास आप देखें स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला सेम है. हमारे पास ब्यूटेन का फार्मूला है. ठीक है, दैट इज़ द C4 एंड 6 7 8 9 10 C4H10. ओके, बोथ हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस हमारे पास किस में आ रहा है? चेन में. एक हमारे पास जो फर्स्ट वन है दैट इज़ द नॉर्मल चेन एंड दैट इज़ द आइसो, okay, in one branch form. That's why it is known as chain isomerism. Same molecular formula but differ in order of the carbon atoms. Second, you may see the second example, same हमारे पास you may see here we have the isoform. We are talking about that is pentane. Okay,
टोटल काउंट करें हमारे पास कितने कार्बन है, हमारे पास C5 का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास लेट मी शो यू अगेन, यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं पेंटेन का फॉर्मूला है, इस तरह से भी शो किया गया और हमारे पास इस तरह से भी। दिस वन इज़ नोन एज आइसोफॉर्म, और ये जो हमारे पास है इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास नियोफॉर्म को शो किया गया है। ओके, तो हमारे पास चेन में डिफरेंस आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड इज अ पोजीशन आइसोमेरिज्म. What is position isomerism? The isomerism which has the same molecular formula but differ in the position of the functional group. Okay, position of the functional group, हमारे पास functional group की position change होती है. You know very well about the functional group. Functional group may be in the hydroxyl form, OH form में भी हो सकता है, halide form में भी हो सकता है, aldehyde और ketone form में भी. तो अगर हमारे पास functional group की position change हो, okay, for example here we have a functional group ब्रोमीन. ठीक है, हमारे पास यहाँ ब्रोमीन है, तो आप देख सकते हैं ब्रोमीन हमारे पास यहाँ पे इस ब्यूटेन के साथ, दैट इज़ अ ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन. ब्यूटेन हमारे पास यहाँ पे हमारे पास वन कार्बन के साथ अटैच है. एंड सेकंड में अगर आप देखें हमारे पास ब्रोमीन, सेकंड एग्जांपल में हमारे पास ब्रोमीन जो है दैट इज़ ऑन द सेकंड कार्बन. ओके, बट हमारे पास अगर फार्मूला देखें, फार्मूला हमारे पास सेम है, बट हमारे पास सिर्फ फंक्शनल ग्रुप जो है उसकी position, that is a bromine, उसकी position different है, that's why it is known as position isomerism. And same in the second example आप देख सकते हैं, here we have the functional group, here just a minute, here we have a functional group that is the hydroxyl group. and hydroxyl group आप देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट में हमारे पास कार्बन 1 में लगा हुआ है, और यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास एट ऑन द कार्बन 2. सो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज है, functional group की position change है, that's why it is known as position isomerism. Now come to the third one, that is the functional group isomerism. Functional group isomerism, the isomers which have the same molecular formula but different functional group. One more very interesting, हमारे पास इसमें हो जी स्टूडेंट, हमारे पास इसमें हो क्या रहा है कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गया. हाउ? जस्ट ऑब्जर्व फर्स्ट वन. हियर वी हैव द एसीटोन, हियर वी हैव द एल्डिहाइड ग्रुप. यू नो अबाउट द, इफ़ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट हमारे पास जो कीटोन होता है उसका फार्मूला क्या होता है, O डबल बॉन्ड CR. ओके, एल्डिहाइड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, O डबल बॉन्ड कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक तरफ अल्काइल ग्रुप होता है, दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन होता है. ठीक है, अब दोनों हमारे पास एग्जैक्टली फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है. यहाँ हमारे पास CHO अटैच है, यहाँ हमारे पास कार्बोनाइल के साथ दोनों तरफ कीटोनिक ग्रुप अटैच है, या अल्काइल ग्रुप अटैच है. हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, बट अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. ठीक है, सो फर्स्ट इज द कीटोन, सेकेंड इज द एल्डिहाइड, different functional group. Same for the second example. Here we have the carboxylic acid. यहाँ हमारे पास फॉर्मेट है. ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बिल्कुल डिफरेंट है, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, बट हमारे पास फॉर्मूला क्योंकि सेम है, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज आइसोमर्स. Now come to the metamerism. This type of isomerism is due to the unequal distribution of the carbon atoms on either side of the functional group. Members belong to the same homologous series. Just observe the first one. You just observe, यहाँ हमारे पास है कार्बोनाइल ग्रुप, here we have एग्जाम्पल ऑफ द कीटोन, ये हमारे पास कीटोन का एग्जाम्पल है. ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप के इस तरफ अगर आप देखा जाए लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच है, और अगर इस तरफ देखा जाए तो हमारे पास दैट इज़ द प्रोपाइल ग्रुप अटैच है. ठीक है, तो हमारे पास इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पेंटानॉन. एंड इफ़ यू ऑब्जर्व द दिस एग्जाम्पल, हमारे पास अगर देखा जाए तो यहाँ से एक अल्काइल ग्रुप इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 3 पेंटानॉन. लेट मी राइट इट अगेन. ये हमारे पास एक एग्जांपल, और ये अगर आप देखें इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ से अगर हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप, जस्ट अ मिनट, हियर अगर यहाँ से हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप यहाँ चेंज हो जाता है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 पेंटानॉन. ओके, तो हमारे पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट है, एक तरफ मिथाइल है दूसरी तरफ इथाइल ग्रुप है, यहाँ हमारे पास दोनों तरफ इथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म में हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, बट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है कार्बन एटम्स की ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. ओके, नाउ कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल. अगर आप इस एग्जाम्पल में भी देखें तो यहाँ हमारे पास ऐसा है, हमारे पास है यहाँ पे अमाइन ग्रुप, अमाइन ग्रुप के इस तरफ भी इथाइल ग्रुप अटैच है, इस तरफ भी इथाइल ग्रुप अटैच है. ठीक है, एंड इफ़ यू ऑब्जर्व दिस अमाइन ग्रुप, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोपाइल ग्रुप अटैच है, और यहाँ हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच है. ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसको हम कहते हैं दैट इज़ द मेटामेरिज्म. नाउ कम टू द लास्ट वन, दैट इज़ द टोटोमेरिज्म.
What is tautomerism? A type of isomerism in which a compound exists simultaneously in two form in equilibrium with one another. Just see the example. इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर आप जब इस फॉर्म को देखें, दैट इज़ अ कीटो फॉर्म. अब इसमें हमारे पास एट अ टाइम दोनों हमारे पास जो सब्सटेंसेस हैं इन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, दे एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन टू फॉर्म इन इक्विलिब्रियम विद वन अनदर. हमारे पास सिर्फ चेंज क्या होता रहता है, दैट इज एक्चुअली द it involves the shifting of position of proton, that is the hydrogen. This type of hydrogen atom is known as mobile hydrogen. You just observe this example and this one. अब ज़रा आप देखें कि हमारे पास इन दोनों एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या आ रहा है. कोई एक प्रोटॉन है जिसकी मूवमेंट की वजह से हमारे पास पूरा ये जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है. जी बताइए, कौन सा हमारे पास हाइड्रोजन है? ये जो हमारे पास कार्बन के साथ जो लगा हुआ हाइड्रोजन है, इसकी मोबाइल मूवमेंट की वजह से, इसकी मूवमेंट की वजह से यहाँ पे हमारे पास चेंज होके यहाँ पे इस जगह आ गया है. और अगर आप देखें थोड़ी देर बाद हमारे पास ये कीटो फॉर्म में आ जाता है. तो जस्ट इस कार्बन की वजह से हमारे पास, लेट मी शो यू अगेन, यहाँ पे हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है इसकी मूवमेंट की वजह से यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल में आ जाता है, यहाँ हमारे पास इनोल फॉर्म में आ जाता है. तो ये सिर्फ एक हाइड्रोजन की मूवमेंट की वजह से हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप या दो डिफरेंट कंपाउंड्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे होते हैं एट अ टाइम. ओके, सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज टोटोमेरिज्म. गॉट इट स्टूडेंट्स? थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट. आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.